ہمارے السلام علیکم دوستوں، ناول فگار عشقم کی 26 قسط پیش خدمت ہے۔ آپ لوگوں کو بار بار ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ کم از کم ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور آپ کے لیے مزید اچھے سے اچھے ناول لائے جا سکیں۔ کیا خبر ہے؟ لیپ ٹاپ پر نظر مرکوز کیے وہ اپنے سیکرٹری کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے بھاری آواز میں گویا ہوا تھا، سر وجہ صدیقی اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، آج رخصتی ہے۔ وہ سب پارٹنرز سے سیکرٹری کو دیکھتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا۔ سیکرٹری خوفزدہ نظروں سے اس کی تنی ہوئی رگیں دیکھ کر ذرا پیچھے ہوا تھا۔ گارڈز کو ریڈی کرو، آج صدیقی کو اس کی وفاداری کا انعام دیتے ہیں۔ سر آپ خود جائیں گے؟ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ نہیں، صرف گارڈز، اگر میں گیا تو وہاں سے ان لوگوں کے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے، اور میں چاہتا ہوں مرجان کاظمی کو اس کے خاص آدمی کی لاش کو تابوت میں سجا کر پیش کیا جائے۔ اس کا عہدہ سن کر سیکرٹری پور کانپ اٹھا تھا۔ اس کا عہد سن کر سیکرٹری پور کانپ اٹھا تھا۔ جی سر، بمشکل کہتے ہوئے فوراً آفس سے باہر نکل کر سکھ کا سانس خارج کرتے ہوئے اس کے اوپر گارڈز کو وارن کرنے کے لیے نکل گیا تھا۔ بابا آپ سے ایک بات پوچھیں ہم؟ صدیقی صاحب نے شفقت سے اپنی لاڈلی بیٹی کا سر گود میں رکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بابا ہمارے نام کا کیا مطلب ہے؟ وہ معصومیت سے صدیقی صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ بیٹا عشیق کا مطلب ہے محبت، عشق۔ صدیقی صاحب نے محبت سے جواب دیا کہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا سوائے آپ کے۔ وہ ان کی گود سے سر ہٹاتے ہوئے خفگی سے بولی تھی۔ بیٹا آج آپ کا نکاح ہے نا کاشف سے، وہ اب سے بے حد محبت کریں گے۔ بیٹی کا سر تھام کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے وہ شفقت سے بولے تھے یہ کہ ہمیں آپ کے پاس رہنا ہے۔ بابا آپ ہمیں کیوں خود سے دور بھیجنا چاہتے ہیں؟ وہ خفا لہجے میں بولی تھی، جس پر صدیقی صاحب کی آنکھوں میں آنسو تیرے تھے۔ بیٹا میں چاہتا ہوں میری بچی ہمیشہ سلامت اور خوش رہے۔ کاشف آپ کو لے کر دبئی چلا جائے گا اور پھوپھو جان بھی آپ کا بے حد خیال رکھے گی۔ صدیقی صاحب نے دل پر پتھر رکھ کر کہا تھا، ورنہ اپنی کل کائنات اپنی اولاد کو اپنے سے دور بھیجنا ان کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ وہ لب بھیجتی ہوئی صدیقی صاحب کو گلے لگاتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ صدیقی صاحب نے سرد آہ بھرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ میں مجبور ہوں میری بچی، میں نہیں جانتا میرا سایہ کب تک تم پر رہے گا۔ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ درندہ صفت انسان سب جان چکا ہوگا۔ اپنی بیٹی کو یتیم ہونے کے بعد یوں در در کی ٹھکریں کھانے نہیں دے سکتا۔ اپنی موت سے پہلے تمہیں رخصت کر دینا چاہتا ہوں، لیکن دل میں سوچتے ہوئے وہ آنکھیں میچتے ہوئے آہ بھر گئے تھے۔ بیٹا اب آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، اب ہی تارا آپ کو تیار کر دیں گے۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی اٹھی۔ ایک آخری نظر اپنے بابا کو دیکھ کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آ جاؤ، دروازے پر ناک کرتی ہوئی وہ اجازت ملنے پر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ شہنشاہ صاحب ہاتھوں میں ایک کتاب تھامے اس کی ورک گردانی میں مصروف تھے۔ اپنی پوتی کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ چکے تھے۔ السلام علیکم نانا صاحب، وہ ادب سے کہتی ہوئی ان کی جانب جھکی تھی۔ وعلیکم السلام نانا کی جان، بیٹھے ہمارے پاس۔ وہ مسکراتے ہوئے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے۔ وہ نظر جھکائے دوپٹے کو سر پر ٹھیک کرتی ہوئی ان کے پاس بیٹھی تھی، ہنوز آنکھیں فرش پر جمائے وہ بکھری سی لگ رہی تھی، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ کیا بات ہے بچے؟ نانا صاحب ہمیں مرجان کے ساتھ نہیں رہنا، آپ ہمیں طلاق دلوا دیں۔ دوپٹے کا کونا ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر شہنشاہ صاحب کے نورانی چہرے پر پریشانی کے سائے سے لہرائے تھے۔ ایسا کیوں بچے؟ آخر کیا ہوا ہے؟ کیا مرجان نے کچھ کہا آپ سے؟ شہنشاہ صاحب نے نرم لہجے میں پوچھتے ہوئے اس کی طرف شفقت سے دیکھا تھا، جس پر بنوں نین کٹوروں میں آنسو بھرنے شروع ہوئے تھے۔ وہ قاتل ہیں، وہ غلط انسان ہیں، وہ کتنے لوگوں کو مار چکے ہیں، وہ خونی ہے۔ آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر اس کے چھوٹے ہاتھوں پر گرتے چلے گئے تھے، جبکہ شہنشاہ صاحب نے سنجیدگی سے اپنے پوتی کو دیکھا تھا۔ ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا نانا صاحب، پلیز، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، پلیز ہمیں ان سے آزاد کر دیں، ہمیں خوف آتا ہے ان سے۔ ہاتھ جوڑتی ہوئی وہ سوجی آنکھوں سے شہنشاہ صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ شہنشاہ صاحب کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہوتی وہ فوراً بیٹھ کے کونے سے اٹھی تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ لب بھینتی ہوئی نظریں جھکا چکی تھی۔ مرجان رک جاؤ، ہماری پوتی کو ہمارے پاس رہنے دو۔ شہنشاہ صاحب کے سخت لہجے پر وہ جو اس کا ہاتھ سخت سے تھامے اسے ساتھ گھسیٹنے کی نیت سے اسے سخت کوری سے نواز چکا تھا۔ سرد نظروں سے شہنشاہ صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی کلائی پر گرفت سخت کر چکا تھا۔ ہم نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے وہ شہنشاہ صاحب کے پاس رکتے ہوئے سہم کر بولی تھی۔ وہ قہر برساتی نظروں سے اسے آخری بار دیکھتے ہوئے دھاڑ سے دروازہ بند کرتے ہوئے کمرے سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔
दरवाजे के धार से बंद होने पर वो आंखें मेचती हुई सिसक गई थी। बैठे हमारे पास बच्चे, उसे बिठाते हुए शहनशाह साहब ने गिलास में पानी डालकर उसकी जाने बढ़ाया था। वो सिसकते हुए गिलास होंठों से लगा चुकी थी। वो नाजुक दिल लड़की उसकी कहर बरसाती नज़रों को भुला नहीं पाई थी। बच्चे, आपको पता है, जब आप छोटे थे तो मिर्जान आपको बहुत प्यार करता था। वो गिलास को होंठों से अलग करती हुई हैरत से उन्हें देख गई थी। वो आपकी खातिर रोज़ ही सुहेल से मार खाता था। बच्चे आपको स्कूल में परेशान करते थे और वो उनसे लड़ाई करता था, जिसकी कंप्लेंट तकरीबन हर रोज़ प्रिंसिपल आपके मामू से यानी सुहेल से करते थे, जिसकी वजह से मिर्जान रोज़ मार खाता था। शहनशाह साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर वो हल्की सी मुस्कुराई थी। जब आप पैदा हुई तो बहुत मुस्कुराया करती थी, इसलिए आपका नाम मिर्जान है। तबस्सुम ज़रा रखा था। वो हैरत से शहनशाह साहब को देख गई थी। उसे तो ये बात पता ही नहीं थी। तबस्सुम का मतलब मुस्कुराहट है, आपको पता है ना। उसके सर पर शफका से हाथ रखते हुए वो पूछ रहे थे, जिस पर वो हाँ में सर हिलाती हुई नज़रें चुका गई थी। एक बार आपको ठंड की वजह से शदीद बुखार हुआ था, मुझे अब भी याद है। उसने पूरे 2 दिन खाना नहीं खाया था, हर वक्त आपके पास बैठकर आपको देखता रहता। शहनशाह साहब की बात सुनकर वो शर्मिंदगी से नज़रें झुका गई थी। वो तो उसे बेस्ट कहते थे, जबकि वो उसकी खातिर इतना केयरिंग बचपन से ही था। नाना साहब, वो हमसे प्यार करते हैं। लहजे में ढेरों मासूमियत थी। शहनशाह साहब मुस्कुरा दिए थे, इसमें कोई शक नहीं। बच्चे, आपके जाने के बाद उसका दिल पत्थर हो गया। वो अपने बचपन को जी नहीं सका। अपनी जान से अजीज दोस्त जुदाई ने उसे बदल कर रख दिया। वो बहुत सख्त कठोर दिल बन गया था। बस तुमने लब भिंचे। उसके बाद माँ बाप से जुदाई का सदमा वो सह नहीं सका। मगर मुझे अब भी याद है, वो बिल्कुल नहीं रोया था। वो गम, वो सदमे उसके दिल के किसी कोने में मौजूद है। उनका दर्द वो रोज़ महसूस करता होगा। मुझे अच्छे से याद है, वो रोज़ रात को मेरे पास आया करता था और एक ही सवाल करता था, दादा साहब, क्या मुझे मेरी ज़हरा मिल जाएगी। उसके सुर गाल आंसू से भीग रहे थे। वो खुद बेहद मोहब्बत करती थी उससे, वो जानती थी। मगर एक खौफ था जो दिल से जाने का नाम नहीं ले रहा था कि वो खूनी है। और मैं रोज़ कहा करता था, हाँ बेटा, ज़रूर मिलेगी। मैंने बचपन में ही उसके दिल में आपके लिए जज्बातों को देखकर आपका निकाह का फैसला किया था, जिस पर आपकी अम्मी ने बिल्कुल एतराज़ नहीं किया और ना ही सुहेल ने। वो जानते थे मिर्जान की जान सही मानों में उसकी ज़ारा में बसती है। वो नज़रें झुकाए पुराने दिन याद करती सिसक गई थी। याले, एक कप कॉफ़ी भेज देना। किचन में खड़ी मारिया को वो याले समझकर हुक्म सादर करता हुआ फ़ोन कान से लगाए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। मारिया, जो किचन में कदम रखने से कतराती थी, ने जल्दी से चूल्हे पर पानी चढ़ाया। उसकी बात नाम मानना मौत को दावत देने के बराबर था। वालेकुम सलाम, कैसी तबीयत है आपकी सिद्दीकी साहब। दरवाज़ा संजीदगी से बंद करते हुए वो सर्द लहजे में बोला था, मिर्जान वो सब जान चुका है मेरे बारे में कि अब तक मैंने तुम्हारी मदद की उसका सुराग लगाने में। उन सब के पीछे जो मास्टर माइंड है वो अलहम दुर्रानी नहीं है, वो कोई और है। फोन पर ग्रस मजबूत करता हुआ वो एक गैर मरई नुक्ते को सुर्ख आंखों से देख रहा था। मुझे कल एक लेटर मौसूल हुआ जिसमें मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। मिर्जान, आज मेरी बच्ची का निकाह है। मैं उसे रुखसत कर देना चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए, मेरी बेटी को कुछ मत होने देना। मैं उसकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। मेरी बेटी का ख्याल रखना, वो भाई मानती है तुम्हें। आपको कुछ नहीं होगा, मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ। वो सपाट लहज में कहता हुआ कब्र से कपड़े निकालते हुए गोया हुआ था। नहीं बेटा, आपका जिंदा रहना मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ मत हैं और निकाह का वक्त हो चुका है, मैं रखता हूँ। वो सर्द नज़र से फ़ोन को देख गया था। कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। मुझे मेरा बेटा चाहिए मुनव्वर। पुलिस से कनेक्शन क्यों यूज़ नहीं कर रहे तुम? क्यों मदद नहीं ले रहे? मैं कर रहा हूँ जो मुझसे हो रहा है। कश्मला, चिल्लाना बंद करो। मुनव्वर से माथे को मसलते हुए आज पहली बार कश्मला बेगम पर चिल्लाए थे। न जाने किस हाल में होगा। काश मैंने आपके साथ ना दिया हो तो आज मेरा बेटा आपके कर्मों की सजा भुगत रहा है। कश्मला बेगम ने जहर खंद लहजे में कहा, जिससे मुनव्वर से मेज़ पर रखे लैंप को नीचे गिराते हुए तैश में आते हुए उठे। तुम इन सब गुनाहों को मुझ पर कैसे डाल सकती हो? तुम दौलत चाहती थी, तुमने मरवाया ताबिश और इस मासूम लड़की की माँ को। मुनव्वर साहब ने तीखी चुनौतियों से कश्मला बेगम को देखते हुए उसी हकीकत का आईना दिखाया जिस पर वो नफरत से नजरें फेरते हुए बेड पर बैठी थी। कहाँ जा रहे हो तुम? मुनव्वर साहब को दरवाज़ा खोलकर बाहर जाते देख वो अचंभे से पूछ रही थी, इस पागल को देखने भूख अफलास से मार रही है ना? मुनव्वर साहब जहरीले लहजे में कहते हुए दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर निकल गए थे। मेरा बेटा ठीक हो, काश या खुदा। हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए वो बेबसी से बोली थी। क्या कहा? फिरोज़ा या नीलम? दायम नदीम से फ़ोन पर बात कर रहा था और उस अंगूठी को
और अंगूठी के रतन के बारे में पूछ रहा था। मिर्जा ने उसे पूरी फैमिली और डिस्टेंट फ्रेंड्स की फ़ोटोज़ देखने के लिए कहा। वो उस नीले रतन वाली अंगूठी वाले शख्स को ढूंढना चाहता था और उसका ख्याल था वो कोई उनका करीबी है। अलीस के कान खड़े होते लड़कियों के नाम सुनकर, जबकि दैम उसकी चोर नज़रों को खुद पर महसूस करते हुए फ़ोन कान से हटाते हुए चुप हुआ था। क्या बक रहे थे? वो गुस्से से आंखें फैलाती हुई उसे घूर कर बोली थी, जिस पर वो मुंह बसोरते हुए लैपटॉप उठाकर गोद में रखते हुए कुछ टाइप करने लगा था। अगर मुझे पता चला ना तुम्हारा किसी नीलम या फिरोजा से चक्कर चल रहा है, तुम्हारी गर्दन काट कर पंखे के साथ लटका दूंगी। छुरी उठाकर उसकी गर्दन पर रखती हुई वो तिल मिलाकर बोली थी, और मैं तुम्हारी ये हाथ से भी बड़ी ज़बान न काट दूं आज। उसे कंधे से पकड़ते हुए वो संजीदगी से बोला था, जिस पर वो आंखें सुकुड़ते हुए पीछे हुई थी। शादी के बाद सारे मर्दों की मोहब्बत में कमी आ जाती है। मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई वो बेड पर नेम दराज हुई थी। दैम ने आंखें घुमाकर इस ड्रामे को देखा जो सिसक रही थी। बस भी करो अली से, उसके कंधे को नरमी से पकड़ते हुए उसको अपने जानिब करते हुए मोहब्बत से बोला था। आप मोहब्बत नहीं करते अब? वो मिनमिनाते हुए उसके कंधे पर सर रखते हुए बोली थी। खुदा कसम यहाँ रहती हो हर पल। उसका हाथ दिल पर रखते हुए वो शौकी से बोला, जिस पर वो मुस्कुराकर उसके दिल पर मुक्का मारते हुए हंसी थी। चल हंसी तो सही मेरी जान। उसके पियाने पर लाभ रखते हुए मुस्कुराकर बोला था। उसका हाथ अपने हाथ में थामती हुई उसके कंधे पर सर रख ही नींद की वादियों में चली गई थी। वो सपाट नज़रों से लैपटॉप पर फोटोज देखने में मसरूफ़ हुआ था। अरे मारिया, इस वक्त क्या कर रही हो? किचन में जानू। जूनी ने उसे चाय बनाते हुए देखकर हैरत से पूछा। अरे वो काफ़ी चाहिए थी मिर्जान भाई को, तो मुझे कहा होता। जूनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर मारिया ने आईब्रो उठाकर मुंह का जाविया बिगाड़ते हुए उसे देखा। जस्ट किडिंग, असल में हरब को भी चाहिए थी। तुम एक कप और बना दो, ये मैं देकर आती हूँ। मिर्जान के कमरे की तरफ उंगली करते हुए जल्दी से कॉफ़ी के कप उठाते हुए मारिया को आध मुंह खोले छोड़कर वो फौरन मिर्जान के रूम की तरफ भागी थी। वाट द हेल, मैं नौकरानी हूँ क्या साहब की चाय बनाती रहूँ? गुस्से से पानी चूल्हे पर चढ़ाती हुई वो तना कर बोली थी। मेरा ब्यूटी फेस खराब हो जाएगा। हेट से दुपट्टे से पेशानी पर आया पसीना साफ करते हुए वो आंखें घुमाकर बोली थी, तुम तो सड़ ही जाओ मरियल औरत। नशाल जो किचन के फ्रिज में पड़ा कस्टर्ड चोरी करने आई थी, उसे देखकर मुंह फुलाते हुए बुड़बुड़ाई थी। क्या कहा तुमने? मारिया ने उसकी तरफ देखते हुए अचंभे से पूछा। अरे मैं कहती तुम कितनी अच्छी हो। निशाल ने दांत तले जबान दबाई। ओह वो तो मैं हूँ। मारी ने बालों को कंधे से पीछे ना से करते हुए कहा, मर जाओ, आज मुझ मासूम को भूखा ही सोना पड़ेगा। वो मुस्कुराकर मुंह में बोड़ बुड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई थी, बेबस महसूस करते हुए। बेचारी आज खाने से रह गई थी ना। मारिया ने अनसुनी करते हुए कंधे उचकाए थे। बगैर दरवाजे पर नाक की वो अंदर दाखिल हुई थी। उसे देखकर वो थम गई थी। शर्टलेस वो टॉवल बालों में रगड़ते हुए उसे देखकर रुका था। सबसे पहली नज़र उसकी गर्दन के पास बने सूरज के टैटू पर डालती हुई वो मुस्कुराहट दबा गई थी। सॉरी, मैं ये देने आई थी, मुझे नहीं पता था ये हो जाएगा। वो जल्दी से सफाई देते हुए कप को ऊपर उठाकर उसे दिखाते हुए बोली, नेक्स्ट टाइम नॉक कर देना। उसके हाथ से कप लेते हुए वो सपाट लहजे में बोला था। जानबूझकर पैर मोड़ते हुए वो उसके कंधे को पकड़ते हुए गिरने का ड्रामा कर चुकी थी। एक हाथ में कॉफ़ी के कप था में वह मुश्किल उसे कंधे से पकड़ते हुए गिरने से बचा गया था। दरवाज़ा खोलते हुए वो रूम में आते हुए रुकी थी। उसे बेपरवाही से छोड़ते हुए वो पीछे हटा था। वो मुस्कुराकर बालों के लिट कान के पीछे करती हुई दरवाजे पर रुकी। तबस्सुम को देखकर मुस्कुराई थी। तबस्सुम ने सरसरी नज़र उस पर डाली थी। वो सोफे से ब्लैक शर्ट उठाते हुए पहन रहा था। गुड नाइट गर्ल। तबस्सुम को देखकर धीरे से एक आंख दबाकर कहती हुई कमरे से वॉक आउट कर गई थी। तबस्सुम ने सर को खम देते हुए उसे इग्नोर किया था। उसकी नज़रों में साफ उदासी थी। एक खाली नज़र उस पर डालते हुए वो वार्डरोब से कपड़े लेकर चेंज करने चली गई थी। सर्द नज़रों से वो बंद दरवाजे को देखती हुई एक सर्द हवा के सपुर्द करते हुए बेड के कराउन से टेक लगाए लैपटॉप उठाए काम में मसरूफ़ हुआ था। मगर उसका जहन कहीं और था। क्यों? वो उसकी मोहब्बत नहीं समझ रही थी। क्यों दूर होना चाहती थी वो उससे। काफ़ी कप साइड टेबल पर रखते हुए वो संजीदगी से एक गैर मराई नुक्ते को देखते हुए सोच रहा था। पिछले 13 सालों से वो उसकी मोहब्बत के लिए तरस रहा था और वो उससे अलग होना चाहती थी। सिंपल वाइट ड्रेस में सर पर दुपट्टा लेते हुए वो बेड से कुशन लेते हुए सोफे पर रख चुकी थी। ये क्या कर रही हो तुम? वो गंभीर लहजे में कहते हुए उसे तीखी नज़रों से देखकर बोला था। उसे नफरत कहते हैं जो हम आपसे करते हैं। उसे जूनी के साथ देखकर शहनशाह साहब की सारी बातें दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर करती हुई वो लापरवाही से बोली थी,
वो चादर को झाड़ते हुए गुस्से से बोलकर खुद पर डालते हुए सो गई थी। लैपटॉप को बेड पर रखते हुए वो उठकर उसके पास आया था। हमसे दूर हैं, बहुत दूर। चादर चेहरे पर डालते हुए वो बेरुखी से बोली थी। वो मुठ्ठियाँ बेचते गुस्सा जब्त करते हुए सपाट नजरों से उसे देखकर उसे अपने मजबूत बाजू में उठा चुका था। क्या बदतमीजी है ये, नीचे उतारे हमें। वो हरत और खौफ से आंखें फैलाते हुए उसके सीने पर मुक्के रसीद करते हुए गुस्से से लाल होती बोली। उसे बेड पर बिठाते हुए वो उसके दोनों हाथ कलाइयों से थामते हुए उन्हें हथकड़ी में बंद कर चुका था। खौफ नजरों से अपने बंधे हाथ देकर वो लरस गई थी। एक बात याद रखना, उसे कंधे से जकड़ते हुए वो अंगार लहजे में बोला था, जब जब तुम अपनी नफरत का इजहार मुझसे करोगी मुझे तकलीफ होगी और उसके नतीजे में मैं तुम्हें भी तकलीफ दूंगा। उसको चेहरा बेहद करीब करते हुए वो करख्त लहजे में बोला। उसकी आंखों से नदियां बह गई थीं जिस पर वो बस संजीदगी से सर को खम दे गया था। हर वक्त वो बस रो देती थी। क्या करने आई थी वो चुड़ैलियाँ, इतने करीब क्या कर रही थी वो आपके? उसके अचानक सवाल पर वो आईब्रो उठाते हुए उसे हैरत से देख चुका था। जवाब दे, प्यार मुझसे करते हैं आप और करीब उसके जाते हैं। नफरत से हथकड़ी में बंद हाथ उसकी मुट्ठी से निकालते हुए वो उखड़कर बोली थी, इस तरह बांध देने से कुछ नहीं होगा। हमें डराना बंद करें वरना हम भाग जाएंगे यहाँ से। ढूंढते रहना अपनी ज़ारा को। फिर उसकी जिला आंखों में आंखें डालते हुए वो धमकी आमेज लहजे में बोली थी, भागने की बात करना ज़रूरी है? उसकी ब्राउन आंखों में देखते हुए वो संजीदगी से पूछ रहा था। उसके सवाल पर वो आंखें फेरती हुई सिसकी थी। क्या सोचती हैं अब मैं खूनी हूँ, मर्डर हूँ, एक जालिम बेरहम दरिंदा हूँ जो बेवजह लोगों को मार देता है? सुलगते हुए लहजे में कहते हुए वो उसे खौफजदा कर चुका था। वो सहमी बेड के करारों से लगी थी। हर बार वो नाजुक दिल लड़की उसके लहजों से डर जाती थी। सब जानना चाहोगी? उसके चेहरे को जगड़ते हुए वो सख्त लहजे में बोला। वो सहमी ना, मैं सर हिलाते हुए उनसे बहा गई थी। एक बात जान ले ज़रा, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मैं पिछले 13 सालों से दीवानों की तरह आपको ढूंढता रहा और क्या दिया आपने मुझे बदले में? ये नफरत, ये हकारत भरी नज़र, ये तकलीफ़ें। उनका मुस्तक नहीं, तुम्हारा एंजल। क्यों नहीं समझती हो? वही मुरजान हूँ जिसके बगैर आप ना चैन से खाती थी ना सोती थी। ये दिल अगर पत्थर हुआ है तो उसकी वजह आपकी जुदाई है जिस पर मजीद पत्थर कर रही हैं आप। बार बार यह कहकर कि आप मुझसे नफरत करती हैं, क्या कसूर है मेरा? उसको चेहरा बेहद करीब करते हुए वो बोल रहा था जबकि वो बगैर पलकें झपके सुर्ख आंखों से उसकी हेजल आंखें देख रही थी जिनमें इश्क में हारा एक शख्स नज़र आ रहा था। यही कसूर है, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ आपसे। या ये कसूर है मेरा कि आपकी मोहब्बत के लिए तरस रहा हूँ, इंतज़ार में हूँ कब मेरी ज़रा मुझसे कहेगी मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। उसकी गर्म सांसें चेहरे पर महसूस करती हुई वो आंखें मेच गई थी। मेरा अंजाम आप हैं, मेरी मंजिल मेरे रास्ते, मेरी हर खुशी आपसे जुड़ी है ज़ारा। उसका गर्म चेहरा हाथों में लेते हुए वो संजीदगी से बोल रहा था। मुसलसल नमकीन पानी की बूंदें उसकी ब्राउन आंखों से टूटकर गिर रही थी। मत दें इतनी तकलीफ की, ये दिल सहने से आरी हो जाए। दूर रहना चाहती हैं आप मुझसे, ठीक है दूर रहें, लेकिन मेरी बन कर रहें। कभी अलग नहीं कर सकता खुद से ज़ारा। मेरी जान बसती है आप में। बेबस हूँ अपने जज्बातों को लेकर, मजबूर हूँ दिल के हाथों। बेपनाह इश्क करता है ये आपसे। हेजल आंखों में नमी पैदा हुई थी। वो सहमी तेज धड़कते दिल के साथ उसकी आंखों को देख रही थी जिनमें सुर्खी फैल रही थी। कभी तलाक नहीं दूंगा ज़ारा, कभी नहीं, भूल जाए मर जाऊंगा लेकिन खुद से अलग नहीं करूंगा। उसका नाजुक वजूद कंधों से गिरफ्त में लेते हुए वो सख्त लहजे में बोला। वो लरजते हुए वजूद के साथ उसके जुनून की बढ़ती हदों को देख रही थी, लेकिन उसके सर पर तो नफरत का भूत सवार था। उसे जुन्नी के साथ देखकर हम नफरत करते हैं आपसे, खौफजदा लहजे में वो लरजते हुए बोली थी जिस पर वो सुर्ख आंखों से उसका आंसू से भीगा चेहरा देखकर रुका था। ठीक है नफरत करें, बेइंतहा करें, लेकिन अगर आपने इस जनूनी वहशी दरिंदे से दूर जाने की एक भी कोशिश भी की ना, जान से मार दूंगा। बालों में उंगलियां फंसाते हुए उसका चेहरा बेहद पास करते वो उसे कपकपा देने वाले लहजे में बोला था। आज के बाद कभी करीब नहीं होगा आपके। उसका चेहरा छोड़ते हुए वो संजीदगी से कहकर कमर से बाहर निकल चुका था। वो दबी दबी सिसकियों के बीच रोते हुए कुशर में चेहरा देकर सदमे से नज़ाल होती चली गई। ख़वातीन हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।